CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ گیجٹس ہوتے ہیں وہ بھی ان سے ریکور ہوئے ہیں۔ یہ جو اس میں بہت سارے مختلف چیزیں ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں سے 7 وہ لوگ ہیں جو کہ کراچی میں جنہوں نے بینک میں وارداتیں کی ہیں، اور 7 ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں جو لاہور کے اندر موجود تھے۔ ان سے ہم نے تقریباً جو ہے وہ 35 لاکھ روپے کی ریکوری بھی کر لی ہے، اور ایک آٹو رکشہ اور 2 ہونڈا موٹر سائیکلیں اور ایک کار سوزوکی ان سے ہم نے ریکور کی ہے، اور تقریباً 22 مقدمے ان سے ہمارے ٹریس آؤٹ ہوئے ہیں لاہور کے۔ لیکن ان میں بینک کا نہیں ہے، یہ چھوٹی وارداتیں جو انہوں نے لاہور میں کی ہیں، لیکن پلاننگ ان کی 7 بینکوں میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ بینکوں کو لوٹنے کی تھی۔ کراچی میں اس سے پہلے یہ 7 وارداتیں کر چکے ہیں، جو کہ 1 ارب اور 33 کروڑ روپے انہوں نے وہاں سے لوٹا تھا۔ اس میں فردر ڈیٹیلز میں ڈی آئی جی صاحب انویسٹیگیشن کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ ان کے جو انکشافات ہیں، 2004 میں انہوں نے یہ اپنا گلشن اقبال میں انہوں نے 2009 میں واردات کی سی 52 کروڑ روپے کی، MCB بینک تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 2014 کے اندر یہ 2009 میں انہوں نے الائڈ بینک میں واردات کی تھی 52 کروڑ روپے کی۔ اس کے بعد انہوں نے 2014 میں MCB میں 4 کروڑ کی واردات کی۔ 2019 میں انہوں نے 4.5 کروڑ روپے کی واردات کراچی ڈیفینس کے علاقہ میں فیصل بینک میں کی۔ 2019 میں پھر دوبارہ انہوں نے 27 کروڑ کی واردات کی عسکری بینک کے اندر، اور 2021 کے اندر انہوں نے UBL میں 42 کروڑ روپے کی واردات کی۔ تو یہ جو بینکس انہوں نے لاہور کے اندر اپنے ٹارگٹ کے اوپر رکھے ہوئے تھے، ان میں ہماری جو زیادہ تر قومی بچت کے مرکز وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس میں قومی بچت کا مرکز جو شادمان میں ہے، قومی مرکز کا بچت جو اچھرا میں ہے، قومی مرکز کا بچت کا مرکز جو مون مارکیٹ میں ہے، اور اس کے بعد شالیمار باغ میں جو ہے۔ بینک آف پنجاب کے 2 بینکس کی برانچز ان کے ٹارگٹ پہ تھیں، ایوبیہ مارکیٹ مسلم ٹاؤن میں اور پنجاب اقبال ٹاؤن میں، اور ایک نیشنل بینک آف پاکستان سید پورہ برانچ ملتان روڈ لاہور۔ یہ انہوں نے ٹارگٹ پہ رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کی ریکی وغیرہ بھی کر لی ہوئی تھی، ان کی پلاننگ تھی۔ اب یہ سارا کا سارا گروپ لاہور میں اکٹھا ہوا تھا، یہاں پہ ان کا پلان تھا کہ ان میں سے کسی بینک کے اوپر واردات کرنے کا۔ دوسری جو واردات کے بارے میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ تقریباً 3 سال قبل اعظم مارکیٹ کے تاجر یاسین ولد حاجی عدنان یاسین ولد حاجی یاسین کو شیرانوالا گیٹ سے اغوا کیا گیا۔ پرچہ نمبر 114/18 3/5/2018 کو ہوا، اور ملزمان نے 50 لاکھ روپے تاوان حاصل کر کے عدنان کو رہا کیا تھا۔ یہ اس کے بعد پھر ہمیں ایک اور بھتے کی کال کا وصول ہوئی، اس کے اوپر پھر انویسٹیگیشن ہوئی، تو یہ جو ملزمان تھے اس میں ہم نے وہ اریسٹ کر لیے ہیں۔ یہ 4 ملزمان ہیں، عمران نواز نام ہے، سعادت حسین نام ہے، شاہ رخ نام ہے، اور شاہ زیب نام ہے، اور جو ایک ملزم ابھی تک ان میں گرفتار نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ بھتے کی ساری رقم ان سے ہم نے برآمد کر لی ہے۔ اور یہ جو بہت ہی، کیونکہ بھتہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ لاہور جیسے شہر میں ایک بہت بڑا، اگر خدا نخواستہ بھتہ یہاں پہ لاہور میں اگر سٹارٹ ہو جائے تو اس کا مطلب کہ پاکستان میں کوئی جگہ سیف رہنے کے لیے نہیں۔ تو لاہور الحمدللہ ابھی تک اس طرح کی جو بھتے کی جو پوزیشن سچویشن اس طرح کی نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ پرانی واردات تھی، اس کو ڈیٹیکٹ کر کے ہمیں ایک سینس آف اچیومنٹ یہ ملتی ہے کہ لاہور از اے سیف پلیس، اور انشاءاللہ وی ول کیپ لاہور ایز اے سیف پلیس، اور لاہور کے اندر انشاءاللہ بالکل یہ بدماشی بھتہ اس طرح کی چیزوں کی جو ہے وہ بالکل گنجائش نہیں آنے دیں گے، اور اس طرح کی چیزوں کو بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ فردر اگر ڈیٹیلز آپ پوچھنا چاہیں گے تو کوشچنس ہیں تو مجھے بتائیں ڈی اے جی صاحب، اور ہم سر مل کے آپ کو جواب دیں۔ پچھلے 4-5 دن سے کیا ایپیسوڈ چل رہی ہے لاہور میں، آپ کہ گوگی بٹ گرفتار ہو گیا ہے، جس طرح ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں، جس طرح مسجد میں اعلانات کروائے جا رہے ہیں، تو سر سوال یہ ہے کیا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے کپڑے اس تک نہ پہنچیں، کسی کی روٹی اس تک نہ پہنچے؟ اگر وہ 15-20 سال سے کرائم نہیں کر رہا تو خود سے اس پر مقدمات درج کیے جائیں، اس کا ویپن جو ہے، جو اس کا لائسنس ویپن ہے، اس کو کسٹڈی میں لیا جائے، اور پھر اس کی گرفتاری کے دوران ہی مقدمات درج کیے جائیں، اور یہ کہا جائے کہ یہ بہت بڑا کرمنل ہے؟ کیا ایسی قانون میں کوئی چیز ہے بغیر ایویڈنس کے؟ دیکھیں
गोगी बाट कब्जा ग्रुप है उसके खिलाफ पर्चे लाहौर पुलिस दे रही है, तो उसके खिलाफ मजीद क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा? दो चीज़ें। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जी ये पुलिस ने इस्तेमाल नहीं किया, बदनाम ज़माना और ये टाइप की जो चीज़ें हैं ये मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। गोगी बट लाहौर में बदनाम ज़माना बदमाश, लाहौर में जिससे लोग डरते हैं, ब्ला 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 ब्ला, ये सारे नहीं वो ठीक है नहीं, लेकिन इसमें इस तरह से है कि आपकी जो ये लोगों की ओपिनियंस हैं जिसके बाद जो कि हम उसको ना इंडोर्स करते हैं ना रद्द करते हैं, हमारा उन ओपिनियन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप बड़े बड़े अखबारों की आप अगर देख लें हेडलाइन जिसके अंदर गोगी बट का जो वो दिया गया खबर, उसमें बदनाम ज़माना और इस टाइप की चीज़ें उसमें इस्तेमाल इस तरह के नाम इस्तेमाल किए गए। अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ पिछले 10 साल में, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसने क्राइम नहीं किया हुआ। उसने क्राइम किया हो सकता है। अगर किसी की कोई ग्रीवेंस है और वो चाहता है कि उसकी ग्रीवेंस पहले इसलिए नहीं रीएड्रेस हो सकी कि उनका ये ख्याल था कि लोगों से डरते भी हैं, ऐसा भी मुमकिन है कि लोगों ने डर की वजह से, खौफ की वजह से अपनी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज ना करवाई हो। हमारा ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाहौर के अंदर ऐसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि सारे मुआशरे में एग्जिस्ट करते हैं जिनसे लोग डरते हैं, और लोग प्रॉबली ये समझते हैं कि जी अगर हम पुलिस में या अदालत में जाके कोई कंप्लेंट करेंगे तो ये बाद में हमें उसकी रेट्रीब्यूशंस देनी पड़ेंगी या उसके ऊपर हमारे से बहुत ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ लोग कुछ किया जा सकता है, उनको पिनलाइज किया जा सकता है। तो जहाँ तक ये अपना मस्जिदों में ऐलान की आपने बात की है, तो वो मस्जिदों में ऐलान हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं। उसमें कुछ प्राइवेट लोगों ने किया अपने तौर पे, कुछ लोगों ने, तो उसमें यही है कि लोगों को ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना भी तो स्टेट का काम है, पुलिस का काम है कि लोग अगर कोई डर की खौफ की वजह से अगर कोई कंप्लेंट नहीं करता है तो उसको रीश्योरेंस देने की ज़रूरत है कि भाई आपकी कंप्लेंट की रीड्रेसल होगी। अगर आप पुलिस के पास आके अपनी FIR दर्ज कराएंगे तो पुलिस उसको मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी। सुन मंशा बम पर पर्चे हुए उस दौर में भी पुलिस ने साजिश में लाना उसमें तो क्या कत्ल होते हैं लक्ष्मी चौक में, उससे पहले इमाम में फायरिंग होती है, उसका मुकदमा टीपू जो है वो दर्ज करवाता है। फिर उसके बाद उसके जवाब में 5 मर्डर नटों के होते हैं, वो टीपू पे दर्ज कराए जाते हैं पर्चे। अब टीपू के घर वालों को बुलाया जाता है कि तुम आकर, उसको बच्चों बुलवान को, उसके मामों को बुलाया जाता है कि तुम आकर उनको नामजद करो। सर ये पुलिस नहीं, ये कोई बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ होगा, ये किसी ऑफिशियल लेवल पे नहीं हुआ होगा। अगर किसी ने अपने तौर पे किया होगा तो किया होगा, मतलब आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं लेके आ सकते। सर उनको बुलाया जा रहा है। नहीं, बुलाया क्यों जा रहा है, मतलब वो अगर आना नहीं चाहते तो उनको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लेके आ रहा है। ये पाया जा रहा है कि जब भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लाहौर आना होता है तो मंशा बम भी पकड़ा जाता है, इसी तरह के ये जो क्रिमिनल है ये पकड़े जाते हैं उसको दिखाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। ये बताएं कि ये करके इसको पकड़ के गोगी बाट को साजिश में डाल करा के ये तो जानता प्रमोट नहीं किया गया। अगर आप इसको मेरे ख्याल से तो प्रमोशन बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से मरने का मुकाम होता है कि अगर किसी का इस तरह से इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। मेरे ख्याल से हम जिस इशू के ऊपर हम बैठे हुए हैं ना, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये 399 का मुकदमा आप दर्ज करेंगे इख्तियारी डकैती का या जो भी है, ये तो बेल अपने फ्रेंड से देखें, वो अपनी सजा भुगत रहे हैं कराची से, वो अपनी रिकवरियां वहां से करवाए हैं। आप उनको नहीं रिकवरी आप बता रहे हैं। सर इसमें ये भी ऐड करते हैं लाहौर से पकड़े किस तरह गए, पुलिस ने किस तरह ये बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन के ऊपर पकड़े गए। ये इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद पुलिस की ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन की जॉइंट टीम CIA और ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन की जॉइंट टीम ने इसके ऊपर वर्किंग की, और ये काफ़ी दिनों से इसके ऊपर काम हो रहा था। इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये मुझे भी पता था कि इस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम हो रहा है काफ़ी अरसे से, तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया इस बात को भी। तो ये अभी, और ये बड़ी जॉइंट एफर्ट के बाद ये जो है ना वो ये बात मटीरियलाइज हुई। ये कराची में कभी पुलिस ले जाएगी, कराची पुलिस ट्रांसफर कराएगी। जी दोबारा बताइए। नहीं, वो मैंने आपसे माजरत कर ली है कि ही इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हम इस पे
कि ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं किया गया, जैसे अभी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब पुलिस जो है वो प्रोसिक्यूशन के अंदर कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसको कवर करेगी कि ये दोबारा से बाहर की तरह निकल आ जाए और कानून। यार देखें, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट इस वक्त नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बावर कराना चाहता हूं और आपको इंश्योर करना चाहता हूं कि ये बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन बदमाशों और चोरों और भत्ताबखोरों के खिलाफ होता रहेगा, लाहौर पीस करती रहेगी। मायरा के बारे में आई थिंक ये चलता है। क्या वो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं या सर आपकी मीटिंग भी है चीफ सेक्रेटरी ये जरा ये बता देना जो मायरा वाला केस साबिर नंबरदार में छो यार, मायरा वाला सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ओवरसीज पाकिस्तानी। ये जो मायरा कत्ल केस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। एक खातून का कत्ल था, उसमें तफ्तीश जारी है। मुल्ज़मान जो हैं उसमें कुछ हमारे पास हैं, एक आध जो है अभी वो नहीं मिला, वो भी हम उसके करीब हैं और ये बहुत जल्दी हम इंशाअल्लाह इसको सॉल्व कर लेंगे। जो कुछ हुआ है वो सारा हमें मालूम है, उस हवाले से काफ़ी सारी जो शवाहिद हैं वो भी हमने जमा कर लिए हैं, लेकिन इस पर मैं बात आपसे तब करूँगा जब एक दफ़ा इस केस को हम जी हाँ है नहीं कोई बेल पे नहीं मेरे पास है, ऐसा नहीं। मैं यही नहीं दोनों नहीं है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि चूँकि स्पेसिफिक नाम लेके ना पूछे ना, कुछ सस्पेक्ट्स हमारे पास हैं। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची में 1.25 अरब रुपए से ज़ायद की बैंक डकैतियां करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान ईद पर लाहौर में 7 सरकारी बैंक लूटने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। CIA मॉडल टाउन ने 2 ग्रुपों के 14 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। बैंक लूटने का मंसूबा बनाने वाले गिरोह के 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार 7 मुल्ज़िमान में लाइक हुसैन, जाहिद हुसैन, सादिक अली शामिल हैं। मुल्ज़िमान में कामरान हैदरी, कामरान उर्फ कामी, फरीद खान, खालिद खान शामिल हैं। मुल्ज़िमान ने कौमी बजट मरकज़ इचरा मून मार्केट को लूटने का प्लान बनाया था। मुल्ज़िमान ने पंजाब बैंक एवेन्यू मून मार्केट को लूटने का भी प्लान बनाया था। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, कराची में 1.25 अरब रुपए से ज़ायद की बैंक डकैतियां करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िमान ईद पर लाहौर में 7 सरकारी बैंक लूटने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। CIA मॉडल टाउन ने 2 ग्रुपों के 14 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए हैं। बैंक लूटने का मंसूबा बनाने वाले गिरोह के 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार 7 मुल्ज़िमान में लाइक हुसैन, जाहिद हुसैन और सादिक अली शामिल हैं। मुल्ज़िमान में कामरान हैदरी, कामरान उर्फ कामी, फरीद खान, खालिद खान शामिल हैं। मुल्ज़िमान ने कौमी बजट मरकज़ इचरा और मून मार्केट को लूटने का प्लान बनाया था। कराची में 1.25 अरब रुपए से ज़ायद की बैंक डकैतियां करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान ईद पर लाहौर में 7 सरकारी बैंक लूटने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मुल्ज़िमान ईद पर लाहौर में 7 सरकारी CIA मॉडल टाउन ने 2 ग्रुपों के 14 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं। CIA मॉडल टाउन ने कार्रवाई की है। बैंक लूटने का मंसूबा बनाने वाले ग्रुप के 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं।